ہندوستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وچ از لیڈ بائی مسٹر مودی، انہوں نے اس پہلگام کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اس سے ناجائز طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے بہت ہی مس کیلکولیٹ کیا۔ ہندوستان اتنا بڑا ایکشن اکیلے جب تک کہ اس کی بیکنگ کے اوپر کچھ طاقتیں نہ ہوں وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ مودی اور اس کے جو 4-5 جنتا جو لوگ تھے وہ ایک وقت میں ہی وہ پروسیکیوٹر بھی بن گئے، وہ جیوری بھی بن گئے، وہ جج بھی بن گئے، اور انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ انڈین میڈیا جھوٹ بولتا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اور ان کی جو کریڈیبلٹی پہلے ہی مشکوک تھی اس آپریشن کے آگ کے اندر، جو ان کی تھوڑی بہت کو عزت بچی ہوئی تھی وہ دھڑام سے گر گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اور ملک کے اندر ایک شخص اگر یونٹی کی فضا جیل کے اندر بیٹھ کے قائم کر سکتا ہے، صرف امیجن کریں کہ وہ اگر جیل سے باہر آئے تو پاکستان میں جو اتحاد اور یکجہتی اور پاکستانیوں کی جو طاقت ہوگی اس کا اندازہ کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عباس ادر۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے اس میں جو ہے وہ انڈیا کی جارحیت ہمیں مسلسل نظر آئی، لیکن 10 مئی کو جب پاکستان نے اس کا جواب دیا تو انڈیا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، ابھی بھی جو گزشتہ روز نریندر مودی نے اپنا بیان دیا اس میں کہا کہ وہ دہشت گردوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے دہشت گردوں کو ہی نشانہ بنایا، لیکن پاکستان نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ملک انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کر کے میزائل دوسرے ملک میں پھینکتا ہے تو کیا وہ دہشت گردی کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ اس حوالے سے ہم آج سارا کچھ پوچھیں گے، یہ جنگ کے حوالے سے بھی اور ملک میں اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی۔ ہمارے ساتھ ممبر پنجاب اسمبلی بھی ہیں اور رہنما پاکستان تحریک انصاف بریگیڈیئر مشتاق احمد صاحب موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب ویلکم۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی جو صورتحال ہے، بھارت کی جانب سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر پہلے حملہ کیا گیا، ایک پولیٹیکل پریشر بھی تھا مودی پر، اور پھر اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، اب نریندر مودی بوکھلاہٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان پر دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی بھی ہم دیکھیں گے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعہ ہے اصل میں؟ انڈیا چاہتا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وچ از لیڈ بائی مسٹر مودی، انہوں نے اس پہلگام کا جو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اس سے ناجائز طور پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے بہت ہی مس کیلکولیٹ کیا۔ اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان اتنا بڑا ایکشن اکیلے جب تک کہ اس کی بیکنگ کے اوپر کچھ طاقتیں نہ ہوں وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہندوستان کو یہ بالکل توقع نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ ری ایکشن دے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، اور ہندوستان نے بغیر کسی ریجنل لیول کے اوپر یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پہلگام کی کسی قسم کی انکوائری کیے بغیر، یہ اسرٹین کیے بغیر کہ اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا، اس نے پاکستان کے اوپر نہ صرف الزام تراشی کی، ہندوستان اور مودی اور اس کے جو 4-5 جنتا جو لوگ تھے وہ ایک وقت میں ہی وہ پروسیکیوٹر بھی بن گئے، وہ جیوری بھی بن گئے، وہ جج بھی بن گئے، اور انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ ہم نے کیا کرنا۔ اور یہ سارا کام ہندوستان نے اور مودی نے اس تکبر میں، اس رونق کے ساتھ کیا کہ پاکستان کو ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے، اور پاکستان کا ریجن کے اندر جو ایک باعزت مقام ہے، اس دنیا کے اندر پاکستان کا نام ایک عزت سے لیا جاتا ہے، اس کو ملیا میٹ کریں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے افواج پاکستان نے اور پاکستان قوم اکٹھے ہو کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی اور مودی کے اور ہندوستان کے اور ان کے بیکرز کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ بلکہ صاحب یہ بتائیے گا، ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، پاکستان کی جانب سے ظاہری بات ہے یہ کہا گیا ہے سیز فائر ہو گئی ہے، دوسری طرف انڈیا کی طرف سے بھی سیز فائر ہو گئی ہے۔ انڈیا کا میڈیا اس وقت فالس خبریں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے، ایک انڈیا کے میڈیا کا فالس جو ہے فیس ہے جو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔
सीज फायर की, और ये कि मोदी अभी भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, तो पाकिस्तानी हुकूमत उन्हें जो है वो सपोर्ट करती है। तो ऐसी सूरत हाल में अब किस तरह आगे हिकमत अमली बनाई जाएगी? जिस तरह जब टेबल में आकर बैठेंगे तो उससे क्या सूरत हाल होगी, आप क्या समझते हैं? आपने एक्चुअली 3 सवाल किए हैं। नंबर 1 मैं पहले इशू को डिस्कस करूंगा कि जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया ने अपनी एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग क्रिएट की हुई थी रीजन के अंदर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन हम उस वक्त भी कह रहे थे, बहुत संजीदा हल्के पाकिस्तान में उस वक्त भी कह रहे थे कि इंडियन मीडिया झूठ बोलता है, हकीकत को उसका ताल्लुक नहीं होता, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी पहले ही मशकूक थी इस ऑपरेशन के आग के अंदर, जो उनकी थोड़ी बहुत को इज्जत बची हुई थी वो धड़ाम से गिर गई, वो खत्म हो गई। और इंडियन मीडिया के कुछ सेगमेंट को अपने इस रवैये के ऊपर शर्मिंदगी का और माजरत करनी पड़ी। ये माजरत क्यों करनी पड़ी? ये इसलिए करनी पड़ी कि उनके पास अब मजीद अवाम को भी अंदर अपने अवाम को बेचने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। देखें, आजकल के जमाने में झूठ कितना अर्सा जो है वो बच सकता है। झूठ के कोई पाँव नहीं होते, और जब तक ये डिजिटल वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज अंडर ऑब्जर्वेशन, आप किस हद तक और कहां तक आप लोगों को मिसलीड करेंगे? तो पहली बात तो हो गई इंडिया के मीडिया की। जो अब आप बात कर रहे हैं कि इंडिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो खिलाफवर्जी कर रहा है और जो है ये पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, या इस तरह की जो वो वार मॉन्गरिंग कर रहा है, मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया की कतन कोई हैसियत नहीं, और उनको इंडियन जो अवाम है उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर। तो उन्होंने पहले तो बात यह कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करें, उसके बाद अगली बात बाद में करें। दूसरी बात आपने की थी जो कि ये जो इस वक्त एपिसोड जंग का हो चुका है, इसके बाद क्या होगा। मैं समझता हूँ ये एक काफी मुश्किल फेज है जिसकी तरफ हम अभी जाने वाले हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत सी जंगें आप मैदान जंग में जीतते हैं, लेकिन आप टेबल के ऊपर हार नहीं सकते हैं। तो जहां तक ताल्लुक था पाकिस्तान के सिपाहियों का, डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो दयानतदारी से की और उसको निभाया और उस दुनिया को बताया और हिंदुस्तान को सबक सिखाया। अब बात आ रही है डिप्लोमैट्स की, और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने निगोसिएशन करनी है, ये उनका इम्तिहान है। हमारे बहुत से मसाइल हैं और उन मसाइल की ही वजह से ये जंग हुई है। बुनियादी मसला क्या है? मसला कश्मीर जी। उसके साथ हिंदुस्तान ने क्या लिंक अप कर दिया, क्रिएट कर दिया, दैट वाज द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये वो बुनियादी इश्यूज हैं और इसके साथ और रिलेटेड इश्यूज हैं जिनको जब नेगोशिएशन हो तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के जो करता धरता हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो इस फील्ड के लोग हैं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो इन मसाइल के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर जो है उसका इजहार करेंगे और इन मसाइल को हल करने की तरफ लेके जाएंगे, ताकि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक लास्टिंग पीस कायम हो सके। और इसके साथ साथ थोड़ी सी जो बात मैं और अर्ज करना चाहूँगा, नेवर ट्रस्ट इंडियन। मोदी ने जो बयान किया है ना कि ये सिंदूर ऑपरेशन अभी जारी है, नेवर ट्रस्ट मोदी। जब भी आप मोदी को देखें तो आप मोदी की ग्रूमिंग देखें, उसकी उठान देखें, वो कहाँ से चला है, उसने क्या क्या करतूत और कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसकी तो सारी सियासत ही 2-3 चीज़ों के ऊपर बुनियाद है। नंबर 1 मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों का कत्लेआम हिंदुस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से नफरत। आपने कभी पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में हिंदुस्तान को इतना डिस्कस किया है? उनका तो इलेक्शन सारे का सारा होता ही एंटी रेटरिक पाकिस्तान के ऊपर है। तो आप ये बात याद रखें कि मोदी इस वक्त जख्मी है, मोदी एक मर्डरस आदमी है और फुल प्रेशर में, और इस वक्त वो इंटरनली बहुत संगीन सियासी मसाइल हैं, उसकी सर्वाइवल का मसला है। तो मोदी से किसी भी अच्छाई की तवक्को न करना, और ये पैगाम है उन मुक़्तदर हलकों के लिए। और मुझे यकीन है कि जो पाकिस्तान के वो हल्के जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा बहादुरी से ऑलरेडी किया है, इंशाल्लाह वो मोदी के इस एस्पेक्ट को, इस शख्सियत को और इस नेगेटिविटी को कभी भी उससे नजर नहीं हटाएंगे। बल्कि सर ये सारी जो वार हुई है, एक तरफ मीडिया था और दूसरी तरफ सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया में हमने देखा इस दफा पहली दफा हुआ कि मीडिया में चीजें जो है वो कुछ और चल रही थी और सोशल मीडिया पर वेट फुटेजेस
प्रूफ कुछ और आ रहे थे और कुछ फुटेजेस जो आना शुरू हुई, जैसे पाकिस्तान में भावलपुर में अटैक हुआ तो उसकी फुटेजेस आ गई, कहीं और अटैक हुआ उसकी फुटेजेस आ गई। अब ऐसे में ये कहा गया कि जो पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया, खास तौर पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो पीटीआई का समझा जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया ने कितनी की अच्छी हिकमत अमली अपनाई कि जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया तो सारी सियासत, सारा कुछ छोड़कर पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर जो है वो भारत के खिलाफ, जाहिर बात है, जो चीजें हकाइक में मबनी थी वो दिखाना शुरू की गई और जो हक में थी पाकिस्तान के वो दिखाना शुरू की गई। कितना की असर रहा उसका, आप क्या समझते हैं? अगर बेटा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, ये पाकिस्तान की बैकबोन है। ये पढ़ा लिखा तबका है, ये सिर्फ जवान नहीं है, ये समझदार जवान है, ये पढ़े लिखे जवान है जिनको दुनिया के और पाकिस्तान के हालात के ऊपर मुकम्मल इदराक हासिल है। इनके अंदर, दिलों के अंदर, इनकी सोच के अंदर, इनके लफ्जों के अंदर, इनकी वीलॉग्स के अंदर, इनके ऑडियो और वीडियो के अंदर सिर्फ एक चीज धड़कती है, वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान से मोहब्बत। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में इन लोगों को हर्ट किया गया। ये तो पाकिस्तान की मैं समझ तो पहली क्या, ये तो दूसरी लाइन जो थी, लाइन ऑफ डिफेंस थी। हमने, मुझे नहीं समझ आ रही है वो कौन सी सोच थी जिसने इनको डिजिटल दहशतगर्द कहा और ये लोग हर्ट हुए। इन्होंने हमेशा पाकिस्तानी अफवाज की, पाकिस्तान के मफादात की हर जगह के ऊपर उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, उसको प्रोपेगेट किया, उसका दिफा किया, उसके साथ खड़े रहे, उसको प्रमोट किया। दुख की बात यही है कि जब सियासी मसलहत के तहत, ज़ाती मसलहत के तहत, ज़ाती मफादात के तहत पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पढ़े लिखे तबके को डिजिटल दहशतगर्द एक लफ्ज़ में कह के दे दिया गया। बट हैट्स ऑफ टू दैट उन लोगों को जिन्होंने इतने इल्जामात बर्दाश्त किए पाकिस्तान के ऊपर। जब पहली दफा जब ज़रब आई और पाकिस्तान के मफादात को सिक पहुंचने का हुआ, तो इमरान खान ने जेल के अंदर होते हुए, कौन सी सख्ती है जो इमरान खान के साथ नहीं की गई। इमरान खान ने वहां से एक पूरा पॉलिसी बयान दिया, उसने कहा मैं अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। वो बयान और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बाद पाकिस्तान का जो 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 डिजिटल पोर्शन था, उसने पाकिस्तान का फिर दिफा किया और दिफा ऐसे किया कि सारी दुनिया मानती है। मैं ये चाहता हूं, मेरी ये गुजारिश है इस प्लेटफॉर्म से कि उनको, इन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में अपना हिस्सा डाला, खुदा के लिए इनको भी पाकिस्तान की इस खुशी में हिस्सा लेने दीजिए, इनके ऊपर मत पाबंदियां लगाइए। कल आपको मैं बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ, परसों जो जिंदाबाद रैली निकली उनके ऊपर पर्चे हुए और कल मेहरबानी अदालतों की उन्होंने उनको रिहा किया। ये तो तरीके होते हैं मुल्क के अंदर, जो मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यगादत पैदा करने के। बहुत से लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा। ऐसा ये बता दीजिएगा, इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर हम इंटरनेशनल सतह पे किस तरह महाज जीत सकेंगे? जाहिर बात है पीटीआई इस वक्त जो है सफर कर रही है और इस वक्त हुकूमत में बाकी जमातें बैठी हैं, तो किस तरह आप समझते हैं मुल्क में अमन आएगा और खुशहाली आएगी और इंटरनेशनली हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे? हमने पिछले 4 दिनों में इत्तेहाद का मुजाहरा किया, हिंदुस्तान को पता चल गया, दुनिया को पता चल गया। हमने इसी इत्तेहाद को आगे लेके चलना है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जो चाबी है वो इमरान खान है। ही इज अ कैटलिस्ट। वो होता है ना, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एक प्रोसेस चल रहा हो तो उस प्रोसेस को अपने तेज करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके अंदर एक चीज को डाल देते हैं, वो उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे देती है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। इमरान खान इस वक्त एक कैटलिस्ट के इंशाल्लाह किरदार अदा करेगा, लेकिन उसको रिहा करना और बेगुनाह लोगों को जिस वक्त जेलों में बंद तहरीक इंसाफ के, उनको रिहा करना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर कोई तकरीर करने, कोई बताने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, यगानत भी आएगी और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को और रूलिंग एलीट को इस वक्त इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो मायूसी की कोई सूरत हाल हो। पाकिस्तान मसाइल के अंदर उन्हीं बेहिसाबे मसाइल हैं, मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाना चाहता। ये मसाइल कोई खत्म नहीं हो गए, ये मसाइल हमें परसों हमारे सामने आंख में आंख ला कर फिर खड़े होंगे, हर शहरी फेस कर रहे हैं। इसको जरूरी है
کہ یہ جو فیز اس وقت یونٹی کا، ایک اسٹرینتھ کا، ایک جوبیلیشن کا ہے، اس کو ہم اسٹرینتھن کریں، اس کو پرمانائز کریں، اور اس کے لیے عمران خان کو اور اس کے ساتھیوں کو رہا کریں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی۔ ایک تو ہمیں اس وقت پولیٹیکلی جو ہے وہ اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ ایک پولیٹیکل جماعت پی ٹی آئی ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت جیل میں قید ہیں، انہیں رہا کیا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اندر سے مضبوط ہو جائیں گے تو باہر سے ہمیں کوئی بھی نہ ہرا سکے گا، نہ ہمیں ڈیمیج کرنے کی کوشش کر سکے گا۔ اسی اچھے کمنٹس کے ساتھ کہ ہم آئندہ جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کو مضبوط بھی کریں گے اور پولیٹیکل سٹیبل بھی کریں گے۔ اپنے میزبان سید عباس حیدر کو اجازت دیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔